at NIOS for Diploma in Elementary Education, programs for telecasting on DTH channels Swayam Prabha 32. She has developed 3 video lectures for Swayam platform for teacher education. She is working as a subject expert for Tata Consultancy Services TCS, as well as working as external subject expert in the area of academics and research work evaluation for several universities. She has tremendous contribution in research as well. She has guided many students of MPhil and MEd. So with this brief introduction, I once again welcome you, ma'am, and I request you to kindly enlighten the participants on the topic learning and the learners. Okay. Thank you so much, ma'am. I think my voice is clear. Yes, ma'am. Okay. So let me start. Today, we are going to take the topic learning and a learner. If we are in this faculty induction program, no doubt we are here for improving our skills related with teaching, and it is only possible to improve your teaching skills if you are ready to understand your learner. If you are not able to understand your learner, it is not possible to teach effectively in your classroom. So this topic is very much important for understanding what is the process of learning and what kind of abilities learner have sitting in your classroom, why individual learner is specific for learning any concept, doing any assignment. So for a teacher, it's very important to understand the mechanism of learning and to understand abilities of learner sitting in your classroom. So if we see present scenario of our education system, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि स्कूल के बाहर बच्चा खड़ा हुआ है. एज अ टीचर हम बच्चे को जबरदस्ती कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें उसको देनी है, उसको याद कर लेना है, याद करके एज इट इज एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस कर देना है. ये सारी कंडीशंस आज हमें देखने को मिल रही हैं. बैग के लोड इतने ज्यादा हो गए हैं कि आज गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ रही हैं to reduce that burden on the back of students. This is the education system of India. Why? Because as a teacher, we are not ready to understand the requirement of our learner, their desire. We are not thinking about the happiness of students in school. यहाँ मैं सभी से एक छोटा सा इशू डिस्कस करना चाहूंगी. जब हम स्कूल की बात करते हैं तो वहां पे 2 तरह की बेल हैं. एक सुबह जब स्कूल की बेल लगती है तो बच्चे का जो लेवल होता है हैप्पीनेस का वो क्या होता है, वो कभी खुश नहीं होता स्कूल जाने के लिए कि वो सुबह की बेल को सुन के बहुत खुश हो. एंड एक और बेल होती है जो उसकी छुट्टी पे होती है लास्ट में एट द एंड ऑफ द स्कूल. एक वो बेल है, सेम बेल बज रही है, उसकी आवाज भी सेम है, लेकिन सुबह के लिए वो बच्चे को बहुत ज्यादा एंजाइटी देती है और शाम को जब वो वहां से निकल रहा होता है तो वो उसको बहुत हैप्पीनेस देती है. दिस इज द बेसिक चैलेंज. हम जिस दिन अपने एजुकेशन सिस्टम में उन दोनों बेल के साउंड को इक्वल हैप्पीनेस से बराबर कर देंगे, नो डाउट कि हम उस दिन उस अपनी व्यवस्था को, उस अपने सिस्टम को ठीक कर लेंगे और हमें ये तभी अचीव होगा, वो दोनों बेल्स की इक्विवेलेंस तब हम एस्टैब्लिश कर पाएंगे व्हेन एज अ टीचर वी आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड the abilities of learners sitting in our classroom. So in this presentation, we are going to think about concept and characteristics of learning, factors affecting process of learning, what are the approaches of learning, individual differences among learner and their importance in teaching learning situation in our classrooms, cause of individual differences and its educational implication, different type of learning styles,
and role of cultural relevance on learning. So during our presentation of both two sessions, we are going to cover these points. एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों को जहां पे भी कोई क्वेरी होगी आप रेज करके उसको पूछ सकते हैं, या आप चैट बॉक्स पे अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, और आप जो भी आपकी कंफ्यूजन्स हैं वो आप जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि एक तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे वैसे भी इंटरेक्शन बहुत कम है, लाइव क्लासरूम से ज्यादा हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन्स हैं, कोई भी पॉइंट्स हैं, just type your query in chat box, or you can ask if you have any confusion. Okay, so please try to make this classroom interactive. What is the teaching learning process? Teaching learning process is something about this. First thing is entering behavior, the all abilities and capabilities of our learner entering in our classroom or entering in any session of school. एक आपके क्लासरूम में बच्चा आता है, उसके कुछ बिहेवियर हैं, कुछ उसकी एबिलिटीज हैं, उन एबिलिटीज के साथ वो क्लासरूम में आया. इट इज कॉल्ड एज इनपुट. The abilities, the behavior, the experiences, the adaptations student have is called as input. After that very abilities in students, you are going to produce some experiences in that very classroom according to your curriculum, according to your objectives of instruction. This is called as teaching learning process. And for a teacher, it is very important to frame the teaching learning process according to need and learning ability of that very individual entering you in your classroom with certain abilities and capabilities that we call entering behavior. After teaching learning process, we are able to modify behavior of that very learner. So that very behavior is called as terminal behavior or output. And after getting that very output, in general, we are able to get feedback that कहाँ पे वो जगह रह गई जहां पे हमें अभी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, हमारे पास क्या ऐसी चीजें और हैं जिनका यूज करके हम अपने लर्नर को और ज्यादा अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं. सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्नर ऑल्सो एंड फॉर टीचर ऑल्सो. ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर हम थोड़ा सा दूसरी तरह से मॉडिफाई करें तो एज अ टीचर वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम आवर लर्नर, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम. हमने कुछ एक्सपेक्ट किया था कि जब हम टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में हैं, वी आर गिविंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस विद वेरियस मेथड्स, विद वेरियस टीचिंग लर्निंग एड्स. उसके बाद जब बच्चे का बिहेवियर मॉडिफिकेशन होगा तो वो कुछ कैसा होगा. We are expecting that very behavior modification. These very behavioral modification are called as EBOs, expected behavioral outcome. जब बच्चा अचीव करता है तो वहां पे हमें जो उसका बिहेवियर मिलता है, that is slightly different from the EBOs. That is real behavioral outcome, RBOs. हमने जो टारगेट बनाया था, बच्चे ने उससे कुछ कम अचीव किया और वो हमारे रियल बिहेवियरल आउटकम रहे. तो जो एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम है और जो रियल बिहेवियरल आउटकम है, उसका जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कॉज करने के लिए हमें अभी कहां पे और मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, हम किन चीजों को और इम्प्रूव कर सकते हैं एज अ टीचर. ये सारे कंसेप्ट्स हमें यहाँ पे इस टॉपिक में देखने हैं, सीखने हैं. और एज अ टीचर आई होप कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज फैक्ट्स हम कुछ हद तक अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर पाएंगे. नाउ व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग होती क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अगर हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, देन व्हाट इज लर्निंग एग्जैक्टली? लर्निंग any relatively permanent change in behavior resulting from experience. It is very important for saying anything that is learning happens. It should be permanent in nature.
अगर कोई भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन है और वो परमानेंट नहीं है, देन हम उसको लर्निंग नहीं कह सकते हैं. ओके. Learning is the modification of behavior through experience and training. If we are saying that anybody is learning something, it should be undergo with the process of experience and training also. For example, if we are saying that anybody is developing basic speaking skill, जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वो छोटा बच्चा जो है वो आपके बहुत सारी एबिलिटी सीख रहा होता है. सबसे छोटी सी बात कहे, वॉकिंग, चलना सीखा. बच्चा कभी छोटा है तो वो चलना धीरे धीरे सीखता है, कैसे उसके मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, उसके बाद वो चलने के कैपेबल हो जाता है. सो वी आर नॉट गोइंग टू से दैट वेरी थिंग इज लर्निंग. तो क्या हम ये कहेंगे कि वो उसने लर्निंग कर लिया, उसने सीख लिया? तो यहां पे आंसर ये है, नहीं, उसने लर्निंग नहीं की. वो सारे बिहेवियर जो आपके जेनेटिक मेकअप से हैं. बिहेवियर आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज इनेट बिहेवियर एंड सेकेंड वन इज एक्वायर्ड बिहेवियर. Innate behavior are all behavior that are inbuilt in genetic makeup of any individual. अगर हम ये कहें कि एक बच्चा चलना सीख रहा है, तो चलना सीखना is not learning. Why? Because चलना उसके जेनेटिक मेकअप में है and it is innate behavior for the child. और वो कभी ना कभी चलेगा ही चलेगा. It may be कि इफ यू आर गिविंग एनी ट्रेनिंग, यहाँ पे क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो वो जल्दी चलने लगता है और अगर हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं तो वो देर से चलता है. ओके. अगर आप उस चीज को ज्यादा ट्रेन कर रहे हैं तो वो थोड़ा जल्दी चलने लगेगा और अगर नहीं ट्रेन कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा देर से चलेगा. दैट्स इट. इससे ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगा जो उसकी प्रोसेस है चलने की, बिकॉज इट इज इननेट बिहेवियर. वो उसके इनबिल्ट है और जब वो इनबिल्ट है जेनेटिक मेकअप में, इसको हम बोलते हैं इम्प्रिंटिंग. वन टर्म इज यूज्ड फॉर दिस जेनेटिक मेकअप, दैट इज इम्प्रिंटिंग. These characters are imprinted in genetic material and acquired at any specific age. सेम चीज अगर हम कहते हैं कि बच्चा बोलने लगा, तो जब बच्चा बोलने लगा इमिटेशन के थ्रू उसके वोकल कॉर्ड डेवलप हो गए, इट इज अगेन नॉट लर्निंग. सो क्या फिर लर्निंग है? लर्निंग वो है कि अगर एक बच्चा, एक ह्यूमन बीइंग, अगर वो स्विमिंग सीखता है, स्विमिंग ह्यूमन बीइंग के लिए इननेट बिहेवियर नहीं है. तो अगर कोई स्विमिंग सीख रहा है, स्विमिंग करना जान गया, तो वो क्या है? उसके लिए लर्निंग है. वॉक में सिंपल चलना उसके लिए लर्निंग नहीं है, लेकिन अगर वो रैंप वॉक करना सीखता है, स्पेसिफिक वे में चलना सीखता है, आर्मी में कुछ वॉक की ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आपको एक साथ वॉक करना है, क्या करना है, देन वो लर्निंग है आपकी. लेकिन अगर हम इसी स्विमिंग का केस किसी डकलिंग के लिए कहें, अगर कोई एक छोटे डक का बच्चा है, वो स्विमिंग सीखता है, तो वो उसके लिए वो लर्निंग नहीं हुई. वो क्या हुई? वो उसके लिए इननेट बिहेवियर है, उसके लिए उसके पास इम्प्रिंटेड कोडिंग है जेनेटिक मेकअप में, और वो एक समय के बाद जरूर स्विमिंग करेगा क्योंकि वो उसका इननेट बिहेवियर. सो फॉर अ डकलिंग स्विमिंग इज नॉट काइंड ऑफ लर्निंग, बट फॉर ह्यूमन बीइंग इफ दे आर गोइंग टू स्विम, सो वो एबिलिटी जो है वो उनकी लर्निंग कहलाएगी. तो ऑल द इननेट बिहेवियर जो कि हमारे अंदर खुद होते हैं, उनको हम लर्निंग में नहीं रखेंगे. इननेट बिहेवियर के अलग जितने भी बिहेवियर हैं, उनको हम लर्निंग के अंडर क्लासिफाई करेंगे. So let me continue. So learning is the modification of behavior through experience and training. Again, learning is the acquisition of habits, knowledge, and attitudes. And learning is a process of progressive behavior adoption. This point is also very important. If we are talking about learning, then it is very important to understand that in case of learning, always be considered for any progressive behavior adoption. Any kind of negative behavior are not comes under the process of learning. What is learning? If
we go through definition of Robert Gagne, one of the psychologists, a change in human disposition or capability that persists over a period of time and is not simply referable to process of growth. So as a teacher, we have to make it clear some behavior are under the command of process of growth, and we are not able to modify that very behavior. So we have to be aware about the process of growth, process of maturation, and how these process are different from the process of learning. तो अगर हमें ये सारी चीजें पता हैं तो हम उस बिहेवियर के हिसाब से अपने इंस्ट्रक्शन को प्लान कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, जब हम देखते हैं, हमने अपना करिकुलम प्लानिंग की तरफ अगर हम जाएं तो करिकुलम प्लानिंग में सिंपल अगर मैं एग्जाम्पल लूं, बायोलॉजी में हम सेल की बात करते हैं. सेल के बारे में अगर हमें पढ़ाना है तो हम क्लास 3rd से 5th से 12th में भी सेल पढ़ाते हैं, 10th में भी सेल पढ़ाते हैं, ग्रेजुएशन में भी सेल पढ़ाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हम सेल पढ़ाते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट वेरी एस्पेक्ट ऑफ सेल? हम उन कॉन्सेप्ट्स को अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी, अकॉर्डिंग टू ग्रोथ, अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अरेंज करते हैं. जब हमें पहले कोई कंसेप्ट बताना है तो बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहिए, और जब हम धीरे धीरे एक सर्टेन लेवल ऑफ मेंटल कैपेबिलिटीज को डेवलप कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, हम उन कंसेप्ट्स को डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं. सो in further slides we are going to take that very aspect of cognitive development also. So proceed for next. Learning is the relatively permanent change in person's knowledge or behavior due to experience. So two terms are very important. It should be permanent change in behavior and it should be experienced by individual. What is the meaning of experience? If you learn anything, you can use that very thing in future also. So it is called as learning. The duration of the change is long term rather than short term. हमें ध्यान रखना है कि लर्निंग की प्रोसेस वो है जब हमें जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हो वो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन लॉन्ग टर्म हो. इट शुड नॉट बी ऑफ शॉर्ट टर्म बिहेवियरल मॉडिफिकेशन. द लोकस ऑफ चेंज इज द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इन मेमोरी और द बिहेवियर ऑफ द लर्नर. रिफ्लेक्शन लर्निंग का होगा, उसके बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के टर्म में मेजर करते हैं तो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होगा. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, वो चेंज इन एक्सपीरियंस और गेन इन एक्सपीरियंस रिटेन करेंगे इन फॉर्म ऑफ मेमोरी. और मेमोरी में भी अभी हम आगे बात करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी की. मेमोरी में भी इट शुड बी ऑलवेज इन लॉन्ग टर्म मेमोरी at the place of short-term memory. Okay. The cause of change is the learner's experience in the environment rather than fatigue, motivation, drugs, physical condition, or physiological intervention. Suppose कोई भी इंडिविजुअल ऐसा है जो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की कंडीशन में कुछ बिहेवियर शो करता है. So that very behavior is not permanent in nature and it is not under the head of learning. Okay. What are the key characteristics of learning? When described in the simplest possible manner, learning is described as the experience acquisition process. बड़ा सिंपल है. जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम में एंट्री करते हैं, कराते हैं किसी बच्चे को, उसको टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं, देन हम उसको एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं और वो उन एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में यूज कर पाता है. अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग अपनी एजुकेशन सिस्टम में जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे निकल रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को एक बड़ी समस्या आ गई है अनएम्प्लॉयमेंट की, कि उनको एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है. दिस इज द बेसिक कॉज. हमने जो उनको एक्सपीरियंस प्रोवाइड किए हैं वो एक्सपीरियंस कहीं से भी उनके आगे के करियर को बनाने में उनको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं. That's why they are not able to use that very experiences in real life situation or in any vocational area.
अभी जो हमारे नई एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करी गई हैं, उसमें ये पॉजिटिव चीज है कि हमें बच्चे को क्लासरूम के बाहर रियल लाइफ सिचुएशन से भी चीजें जोड़ के पढ़ानी है, उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने हैं, किसी भी एरिया के वो हो सकते हैं, जिससे कि जब वो उस एरिया में जाएं तो they have much more experiences than earlier. So this experience acquisition should be according to need of the society and according to need of the time. For example, अभी अगर हमें यहाँ पे अगर हम लेक्चर की बात करें या हम एज ए पार्टिसिपेंट बात करें, अगर हम कॉम्पिटेंट ना हो तो क्या हम जो पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम और रिफ्रेशर प्रोग्राम अटेंड करते थे और जो अभी के हमारी जो सिचुएशन है एज अ टीचर भी हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमारे स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, अगर हम अकॉर्डिंग टू टाइम उन एक्सपीरियंसेस को नहीं एक्यूमुलेट कर रहे हैं, देन वी आर नॉट लर्निंग। और एक्सपीरियंसेस हमेशा ऐसे होना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम हो। तो हमें ये ध्यान रखना है ड्यूरिंग द प्लानिंग ऑफ करिकुलम, ड्यूरिंग द प्लानिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस गिवन बाय अस इन द क्लासरूम, दैट वी आर मेकिंग आवर स्टूडेंट्स रेडी फॉर द फेसिंग चैलेंज ऑफ society. In the complex form, learning can be described as process of acquisition, retention, and modification of experience. It reestablishes the relationship between stimulus and response. As a individual, जब भी हम किसी स्टिमुलस को फेस करते हैं तो हम उसके अगेंस्ट कोई ना कोई रिस्पॉन्स करते हैं। जो भी लर्निंग है, जितनी भी लर्निंग की प्रोसेस है, चाहे वो हमारे क्लासरूम में हो या लर्निंग क्लासरूम के बाहर भी होती है, सोसाइटी में होती है, इमिटेशन से होती है, अब वो लर्निंग कहीं पे भी हो, उसके पीछे जो कॉजेटिव एजेंट है, हमारे पास केवल 5 सेंस चैनल है। हम सभी जानते होंगे उन 5 सेंस चैनल के बारे में। उन 5 सेंस चैनल का यूज करके ही कोई भी अपने बिहेवियर मॉडिफिकेशन करता है या एक्सपीरियंसेस को रिटेन करता है। अब ये जो 5 सेंस चैनल है, कोई भी बाहर से इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके उन सेंस चैनल को स्ट्राइक करती है, दैट वेरी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज स्टिमुलस, और उस स्टिमुलस के लिए आप रिस्पॉन्स करते हैं, दैट वेरी थिंग इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स। स्टिमुलस आपके इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को परसीव करने के बाद आप कोई ना कोई रिस्पॉन्स करते हैं। सपोज आई एम आस्किंग अबाउट नेम ऑफ 5 सेंस चैनल। अब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में चैट करके बताइए कि 5 सेंस चैनल कौन कौन से हैं जिनके थ्रू हम कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं। मैं आपको यहां पे बताती हूं, लेट मी चेक। हाँ, आईज, नोज, टंग, ईयर, स्मेल, नोज, आई थिंक नोज, स्किन, हाँ कंप्लीट। हमें हमारे 5 सेंस चैनल मिल गए हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताए हैं। तो यही 5 सेंस चैनल हैं। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स। टच इज रिलेटेड विद स्किन and for smell it is related with nose. Okay, so 5 sense channel यही है। और जैसे ही अभी हमने एक स्टिमुलस दिया, आपने अपने सेंस चैनल विद द हेल्प ऑफ ईयर, सुनने की क्षमता से उसको रिसीव किया, और उसके बाद आपने मुझे रिस्पॉन्स किया कि ये हमारे सेंस चैनल हैं। और वो रिस्पॉन्स करने के लिए आपका क्या काम आया? आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में थी, और आपने उस लॉन्ग टर्म मेमोरी से उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया, और रिट्रीव करने के बाद आपने उसको प्रोड्यूस किया। और जब हम किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में बात करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, वहां पे हमें जो रिस्पॉन्स करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम बोलते हैं इफेक्टर्स। जैसे अभी आपने नॉर्मली हम क्लासरूम में होते तो आप क्या करते, बोल के बता देते कि ये चीजें हैं, या अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती तो आप बोर्ड पे लिखते, अगर हम किसी को बुलाते बाहर कि हाँ बोर्ड पे लिखिए। अभी आपने क्या किया, आपने अपने की पैड का इस्तेमाल किया और आपने उन सेंस, क्योंकि मैंने बोलने के लिए मना किया,
मैंने कहा था कि आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करिए, तो अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस आपने उसी हिसाब से रिस्पॉन्स किया। ओके, सो जो लर्निंग है वो हमेशा रीस्टैब्लिश करती है रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अभी अगर कुछ लोग ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रही होगी कि 5 सेंस चैनल कौन होते हैं, या मान लिया 1-2 पता चल रहा होगा अपने दिमाग में, आपने खुद ही एनालाइज किया होगा कि बाकी को क्या बोलना है, तो आपको अभी क्या हुआ, एक वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया कि हाँ अगर ये क्वेश्चन आगे हमसे फ्यूचर में पूछा जाएगा तो इसके लिए ये रिस्पॉन्स है, और इस तरह से ये मॉडिफिकेशन इन एक्सपीरियंस है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लर्निंग। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। It involves all those gamut of activities which may have a relatively permanent effect on the individual. The process of learning is concerned about experience acquisition, retention of that very experiences, and experience development in a step-by-step manner, synthesis of both old and new experiences for creating new pattern. Is it clear? अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है आपके पहले वाले एग्जाम्पल से, जब आपने इंटरैक्ट किया कुछ लोगों को अलग अलग चीजें थी जो उन्होंने अपना मॉडिफाई किया होगा अपना पैटर्न, और ये जो पैटर्न मॉडिफिकेशन हम करते हैं अभी हम आगे इसको बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, इट इज कॉल्ड एज स्कीमा। हमेशा हमारा मेंटल मेकअप होता है और उस मेंटल मेकअप को हम रीअरेंज करते रहते हैं, यानी कि जो हमारा स्कीमा है उस स्कीमा को हम हमेशा मॉडिफाई करते रहते हैं। Last point is learning is concerned about cognitive, conative, and affective aspect. Knowledge acquisition process is cognitive. Any change in emotions is affective, and conative is acquisition of new habits or skill. This very point is very important for teachers to यूज इन आवर क्लासरूम। जनरली हम जो अपनी क्लासरूम की टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं वो केवल और केवल अपने एक डायमेंशन की ओर फोकस करते हैं, दैट इज कॉग्निटिव एरिया। जनरली जो ओवरऑल डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो तब तक पूरी नहीं होती जब हम कॉग्निटिव एरिया के साथ साथ अफेक्टिव एरिया और कोनेटिव या साइकोमोटर एरिया को भी ट्रीट करें, उसको भी ट्रेन करने की कोशिश करें। कॉग्निटिव मीन्स सिंपल गिविंग इंफॉर्मेशन, एक बच्चे को आपने इंफॉर्मेशन दिया, इसके भी फर्दर कई सारे पार्ट्स हैं, आप लोगों को भी दूसरे लेक्चर्स में जहां ब्लूम टैक्सोनॉमी बताई जाएगी वहां पे डिटेल में बताया जाएगा कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन में। अभी तो क्योंकि आप लोगों का स्टार्ट ही हुआ है तो मे बी कि शायद आपने उसको डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, बट कॉग्निटिव इज सिंपल, इज रिलेटेड विद नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। लेकिन जब हम अफेक्टिव की बात करते हैं तो अगर उसके एटीट्यूड में, उसके इंटरेस्ट, उसके इमोशंस में अगर हमने कोई परिवर्तन किए तो वो क्या होता है, वो ट्रू नॉलेज होती है और वो उस बच्चे के एक्सपीरियंस में रिलेटिवली परमानेंट होती है। यहाँ पे जैसे अभी कुछ दिन पहले एक बहुत इशू एक डिस्कस हो रहा था कि एक एलिफेंट थी, फीमेल एलिफेंट, जिसको कि कुछ एक्सप्लोसिव वगैरह खिला करके और वो फिर उसकी डेथ हो गई, वो पानी में जा करके खड़ी हो गई, और ये उस जगह की बात थी जहां केरला की बात थी और 100% लिटरेसी की बात थी। तो लिटरेसी तो है, हमने कॉग्निटिव एरिया को पूरा ट्रेंड किया, लेकिन हमने वो इमोशंस, वो अफेक्शंस, वो फीलिंग, वो वैल्यूज नहीं इनकलकेट करी जो एक अच्छी सोसाइटी के लिए वहां के ह्यूमन बींग्स में होनी चाहिए। तो ये क्रिटिसिज्म था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया है लेकिन अफेक्टिव और साइकोमोटर डेवलपमेंट नहीं हुआ। द साइकोमोटर डोमेन और कोग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड विद स्किल ट्रेनिंग। अगर हम मान लिया साइंस के अपने बच्चे को बात करते हैं तो अगर वो डिसेक्शन कर रहा है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट्स के अच्छे से हैंडलिंग कर रहा है, देन इट इज अबाउट द साइकोमोटर ट्रेनिंग और साइकोमोटर डोमेन ट्रेनिंग। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे साइकोमोटर डोमेन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव, देन कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेडिकल के एरिया की बात करते हैं तो अगर मेडिकल के एरिया में सर्जरी सिखानी है तो सर्जरी केवल क्लासरूम में बैठ के किताबें पढ़ा के नहीं सिखाई जाएगी, वहां पे आपको केवल कॉग्निटिव ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा, वहां पे आपको साइकोमोटर ट्रेनिंग या कोनेटिव ट्रेनिंग पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी। ओके,
According to Robert Gene, stages of learning are 8, and these are signal learning, stimulus response learning, verbal association learning, chaining, discrimination, concept learning, rule learning, and problem solving learning. Why it is important for us? एक्चुअली होता क्या है कि जब आपके क्लासरूम में एक स्टूडेंट बैठा है और उसकी जो एबिलिटीज हैं वो जैसे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उस तरह से चेंज होती है। गैने ने ये हायरार्की बनाई है तो वो किस स्टेज की लर्निंग कर रहा होता है। जैसे जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वहां पे केवल सिग्नल लर्निंग होती है उसके अंदर। उस स्टेज पे आप उसको कंसेप्ट्स नहीं सिखा सकते, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि अभी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। दूसरे स्टेज पे जब आता है वो थोड़ा उसका ग्रोथ होती है तो वो क्या करता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग सीखता है। कोई भी स्टिमुलस होगा उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स करना है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे को कोई भी चीज सिखाई गई तो वो उसके लिए छोटे छोटे रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। स्टिमुलस दिया गया तो उसके लिए वो रिस्पॉन्स करता है। फिर चीजों को वो बोल बोल के एक दूसरे वर्ड के साथ मिला करके एक्सप्रेस करना सीखता है, दैट इज वर्बल एसोसिएशन। फिर कुछ चीजों को और बड़े बड़े वर्ड्स को, बड़े बड़े चीजों को उनको जोड़ करके एक चेनिंग वाली स्टेज आती है। देन उसके बाद उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी डेवलप होती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लिया एक थैला सा बर्तन है, कोई थाली में आपने 1 लीटर मिल्क डाल दिया और एक कोई ग्लास है लंबा सा, आपने उसमें 1 लीटर मिल्क डाल दिया। अगर आप एक छोटे बच्चे से पूछते हैं कि किसमें ज्यादा मिल्क की क्वांटिटी है, वो नो डाउट सीधे वो बड़े ऊंचे वाले बर्तन को बोलेगा कि हाँ इसमें ज्यादा क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वहां पे डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी नहीं डेवलप हुई होती है। वो जो लर्निंग करता है, वो जो रैशनल थिंकिंग है उसकी, वो अंदर उसके डेवलप नहीं हुई है कि वो ये कहे कि मे बी ये बर्तन इस तरह से फ्लैट है लेकिन वॉल्यूम ऑफ मिल्क क्या हो सकता है, दोनों में बराबर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं डेवलप हुई है। एज ए टीचर हमें ये समझने की इसलिए जरूरत है कि किस स्टेज स्पेसिफिक पे, अभी हम पियाजे की थ्योरी भी बताएंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि किस स्टेज पे कौन कौन सी एबिलिटीज डेवलप होती हैं, वहां पे इन डिटेल हम इसको डिस्कस कर पाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि किस स्टेज पे कौन सी लर्निंग की एबिलिटी है। एक एज के बाद जब बच्चे में डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग की एबिलिटी डेवलप हो गई है तो वहां आई थिंक कोई अपना माइक कर रहा है, मुझे मेरी वॉइस सुनाई दे रही है। Am I audible? Yes, ma'am. Ma'am. Okay, thank you. Yes, ma'am. आप सभी अपना म्यूट ही रखिए माइक, क्योंकि उस वजह से शायद कुछ इको हो जाती है। मैं ये कह रही थी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो एक स्टेज पे आया, उसके बाद फिर कंसेप्ट लर्निंग, देन रूल लर्निंग, एंड सबसे लास्ट में जो एबिलिटी डेवलप होती है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इससे पहले अगर हम बच्चे से वो एबिलिटीज उसके अंदर डेवलप नहीं हुई और हम उससे अगर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो नो डाउट कहीं ना कहीं हम अपने उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहले स्लाइड पे जो मैंने बात की थी कि आपके जो एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम होते हैं वो आपके रियल आउटकम से मिसमैच करेंगे। व्हाई? बिकॉज आपने वो जो अपने एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम रखे थे उनके अंदर ये बातें ध्यान में नहीं रखी थी, आपकी प्लानिंग अप्रोप्रिएट नहीं थी, इसीलिए आपके बिहेवियरल आउटकम में क्या होगा, दिक्कत होगी। ठीक, आगे चलते हैं। कौन कौन से लर्निंग के एस्पेक्ट हैं जो एज अ टीचर हमें समझने चाहिए? तो बेसिकली जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो लर्निंग के 3 एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले कॉग्निटिव लर्निंग एस्पेक्ट की बात करेंगे, जो कि मैं पहले से बता रही हूँ कि जो मेंटल प्रोसेसिंग है, हिडन एक्टिविटीज है। कोई बच्चा है आपके क्लास में कुछ भी नहीं बोलता, वो बैठा रहता है, तो क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो कुछ नहीं सीखता? नहीं, वो सीखता है, लेकिन उसके सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, उसके मेंटल ऑर्गेनाइजेशन में है, उसके एक्सपीरियंस एक्विजिशन में है, उसके स्कीमा रीअरेंजमेंट में है, बट मे बी कि वी आर अनेबल टू identify that very changes. So this type of learning is called as cognitive learning. Second one is behavioral learning. Behavioral learning is simply visible thing.
एनी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, मान लिया आपने किसी बच्चे को कुछ हैबिट सिखाई कि क्लासरूम में डिसिप्लिन रहना है, अपने पीयर ग्रुप के साथ किस तरह से बिहेव करना है, इंस्ट्रूमेंट्स को आपको कैसे हैंडल करना है, ये these changes in experiences, these modification and these aspects of learning are clearly observable, and these are called as behavioral aspects of learning, and it can be clearly visible to everyone. Next one is social learning. Social aspect is very important for case of learning. कोई भी बच्चा किस परिवेश में रहता है, किस समाज में रहता है, वहां की क्या रिक्वायरमेंट है, वहां पे क्या लर्निंग हो रही है। जैसे अभी हमारी कोई भी क्लासेस थोड़ी हुई थी कि हम ऑनलाइन क्लासेस कैसे अरेंज करें। जैसे आज मेरा वेबएक्स पे मैंने पार्टिसिपेट तो किए, लेकिन वेबएक्स पे अभी तक मेरे कोई भी लेक्चर नहीं हुए थे। मैंने अभी तक जनरली हम यहाँ पे जूम बैन है तो यूनिवर्सिटी में गूगल मीट का ही यूज करते हैं, शुरुआत से ही करते आ रहे हैं, मार्च से ही। अब गूगल मीट के अलावा हमें जूम के प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज है, हमने जूम में लेक्चर लिए डिफरेंट जगह गूगल मीट के अलावा। फिर वेबएक्स पे अटेंड किए थे, लेकिन वेबएक्स पे कभी प्रेजेंट नहीं किया था। तो क्या हुआ, वो लर्निंग हुई। आपने उन सारे प्लेटफॉर्म के बारे में चीजें सीख रखी है, उनको एक्सप्लोर कर रखा है, देख रखा है, और जिस तरह से आपकी सोसाइटी में वो रिक्वायरमेंट है, आप उनको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो दिस इज द सोशल। इसके लिए कहीं पे कोई क्लास नहीं हुई थी कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है। सिंपल 1 बाय 1 स्टेप हमारे स्टूडेंट्स ने भी सीखा, हमने भी सीखा, और एक एक करके हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करे, और हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करने की पोजीशन में आज तैयार हो गए। इवन हमारे स्टूडेंट्स भी क्या कर रहे हैं, वो भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने प्रेजेंटेशंस देते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी मच कैपेबल विद दीज ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग मैकेनिज्म। दिस इज सोशल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। आपने अपनी सोसाइटी में वहां की नीड्स, वहां की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना बिहेवियर मॉडिफिकेशन किया, और अपने को क्या किया, इसके कैपेबल बना लिया है। इट इज ऑल्सो क्लियरली ऑब्जर्वेबल। The factors affecting process of learning, it is very important to know for a teacher that what are the factors causing are going to affect the process of learning. होता क्या है, लर्निंग की प्रोसेस दो चीजों से अफेक्ट होती है। फर्स्ट वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर एंड सेकेंड वन इज फैक्टर रिलेटेड विद लर्नर। जब तक इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपका बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, आप अपने क्लासरूम में लर्निंग की प्रोसेस को अच्छे तरीके से एंश्योर नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन दोनों के ऊपर ध्यान देना है। अगर फर्दर क्लासिफिकेशन करें इसका, तो इसको इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सपोज learner related factors, teacher related factor, task related factor and environment related factors. learner related factors सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। just wait a minute. learner related factor, first one is motivation, second one is maturation, level of aspiration, psychological needs, goals, interest, study habits. These are basic factors related with learner that influence learning in your classroom. होता क्या है कि अगर हम यहाँ से, जैसे हमने क्लास लेनी है, हम क्लास लेने के लिए बैठे हैं, सारी प्रिपरेशन कर ली, प्रेजेंटेशन भी बना लिया, हम क्लास ले रहे हैं, लेकिन अगर हमने ये इंश्योर नहीं किया कि जो हमारे लर्नर हैं उनकी क्या एबिलिटीज हैं, उनका मोटिवेशन कितना है, उनकी इंटरेस्ट क्या है, उनकी स्टडी हैबिट क्या है, क्या हम उनके क्वेरीज को डील कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट मेंटेन कर रखे हैं, तो हमारे साइड से तैयारी कर लेने से कुछ भी नहीं होगा, जब तक कि सामने से वो चीजें, वो रेडीनेस के साथ वो चीजें नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मोटिवेशन की बात करें, तो जनरली हम लोगों ने भी प्रोग्राम किए थे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना था, रिफ्रेशर प्रोग्राम करना था। इट्स वेरी टफ टू अटेंड एनी प्रोग्राम फॉर 28 डेज। और अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मे बी कि और ज्यादा टफ हो गया है, क्योंकि पहले तो एक इंटरेक्शन होता था, लोगों से मिलते थे, कहीं जाते थे, अपना ब्रेक हुआ, नाश्ता किया, खाना खाया, तो मोटिवेशन भी थोड़ा हाई रहता था। हालांकि 12-15 दिन तो अच्छे से कट जाते थे, उसके बाद वो सब चीजें भी नहीं अच्छी लगती थी। अभी क्या करना है, अभी तो सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज हो गई है। अभी तो आपका इंटरेस्ट किस तरह से, आपको कैसे मोटिवेट करना है। खैर, आई एम वेरी मच लकी कि अभी हमारा 5-6 दिन ही हुए हैं, तो अभी मोटिवेशन लेवल हाई है। हम जो यहाँ से कम्युनिकेट करेंगे वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो जाएगा। एंड एक और बात, फटीग।
अगर हम कोई भी लेक्चर, आप अभी लेक्चर ले रहे हो, देख रहे होंगे, आपके जो फर्स्ट सेशन के लेक्चर होते हैं उनके कंपैरिजन में सेकंड सेशन के लेक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आते। अभी तो लंच का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आफ्टर पोस्ट लंच आप क्या करते हो, बहुत हैवी लंच लेने के बाद जब आप सोचते हो कि आप एक अच्छे से इंटरेक्शन कर पाओगे या आप अच्छे से समझ पाओगे चीजों को, थोड़ा मुश्किल होती है। अभी आई एम लकी कि इस बार मुझे प्री लंच सेशन मिला है, नहीं तो जनरली मैं पोस्ट लंच सेशन में ही जाती हूँ, क्योंकि वो ट्रेवल करके जाने में पोस्ट लंच सेशन ठीक रहता है। तो दीज आर द फैक्टर्स। अगर हमें ये फैक्टर्स पता है, अभी क्या है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, क्लासरूम को इंटरैक्टिव करना। इंटरैक्टिव करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बीच बीच में हम खाली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या हम ये कहते हैं कि आप अपनी क्वेरीज जो है वो डालिए, जिससे कि अगर हम उन क्वेरीज को देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उन चीजों को क्लियर कर सकते हैं और अपनी क्लासरूम को इंटरैक्टिव बना सकते हैं। नॉर्मली लाइव क्लासरूम में आपके क्लासरूम का इंटरैक्टिव बनाना इज वेरी सिंपल प्रोसेस, वहां पे इसके लिए कुछ नहीं करना होता है खास। लेकिन यहाँ पे ये एक चैलेंज है कि हम इसको इंटरैक्टिव कैसे बनाएं। मैं आप लोगों के चैट बॉक्स एक बार चेक कर लेती हूँ, कोई क्वेरी तो नहीं है आपकी? नहीं। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन एंड सिंपल एग्जाम्पल, थैंक यू सो मच। होप कि आप लोगों को वो समझ में आए, और जहां पे भी आपको कोई कंफ्यूजन है आप उसको पूछ लीजिए तो वो ज्यादा बेटर होगा। हमारे पास, हम आपके साथ 3 घंटे के लिए हैं, तो उस समय का थोड़ा सा फायदा उठाया जाए, और अगर कुछ कंफ्यूजन्स हैं तो उनको क्लियर कर लिया जाए, ये सबसे अच्छी चीज है। So I think it is clear that learner related factor is much more important in any situation of learning. Second one is teacher related factor. अभी ऑनलाइन मीडियम में सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया है कि टीचर की पर्सनालिटी, उसका जो इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता था वो आज बिल्कुल जीरो है। और अब तो मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ, जैसे अभी हमारी यूनिवर्सिटी में भी एक सिलेक्शन होना था, तो सिलेक्शन के लिए भी ऑनलाइन इंटरव्यू की प्रोसेस स्टार्ट करी गई, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और टीचर्स की कमी है, तो सिलेक्शन। अब पर्सनालिटी का फैक्टर एक टीचर के लिए, ड्यूरिंग द इंटरव्यू उसको भी ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है कि हाँ उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी जाती थी, और तब उसका इंटरव्यू में ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाता था। लेकिन अभी हम ऑनलाइन मीडियम से इंटरव्यू भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड फॉर जॉब सिलेक्शन ऑल्सो। अब क्या है, टीचर की पर्सनालिटी, उसका कम्युनिकेशन, उसकी टीचिंग स्टाइल, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी आपकी लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं आपके क्लासरूम में। और आपने देखा होगा अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में, आप याद करिए अपनी क्लासरूम में कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनकी टीचिंग आपको आज तक भी याद है, और मे बी कि आप उनका इमिटेशन भी करते हो अपनी क्लासरूम में कि हाँ हमें उनकी तरह पढ़ाना है। व्हाई? बिकॉज दीज आर द फैक्टर्स दैट are relatively permanent, and these experiences are much more going to affect our students in our classroom. Task related factor, ये एक एस्पेक्ट है कि जब आप किस टास्क पे बात कर रहे हैं, टॉपिक क्या होगा। सपोज मैं जनरली इवेल्युएशन पे बोलती हूँ, और इवेल्युएशन के अगर उसके एस्पेक्ट्स हैं, टेस्ट कंस्ट्रक्शन कैसे क्या करेंगे, वहां पे एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, वहां पे कंटेंट दूसरा है, वहां पे चैलेंजेस दूसरे हैं, वो जनरली एक एप्लीकेटिव टॉपिक हो गया। लेकिन अभी जो हम बात करते हैं इट इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, और ये यहाँ पे आपको लर्नर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके स्टेजेस को पहचानने, और उसके बाद क्लासरूम में अपनी लर्निंग को किस तरह से मॉडिफाई करना है, उससे रिलेटेड टॉपिक है। दोनों ही कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट हैं, और दोनों के लिए हमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज का यूज करना होता है, डिफरेंट तरीके से हमको उसको कम्युनिकेट करना होता है। तो करिकुलम टास्क कैसा है आपका, उस टास्क के हिसाब से आपकी लर्निंग भी अफेक्टेड होती है। अगर आप उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे एज अ टीचर, तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस मैक्सिमाइज होंगे। अदरवाइज अगर आपने प्लानिंग में बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी रख ली, अकॉर्डिंग टू टास्क आपने उसको नहीं फ्रेम किया, देन आप उसको अच्छे से इफेक्ट नहीं कर दे पाएंगे। लास्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज, अगर हम एक तरीके के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे मान लिया आपने किसी को मैथ्स में कोई कंसेप्ट पढ़ाया किसी बच्चे को, और वो कंसेप्ट उसको फिजिक्स में भी यूज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी उस लर्निंग को ट्रांसफर करेगा। नॉर्मली जैसे हम एजुकेशन के एरिया में जब आए, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात होती है। जैसे अभी भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे कंटेंट एजुकेशनल साइकोलॉजी के पार्ट हैं।
साइकोलॉजी के लिए जूलॉजी की नॉलेज बहुत जरूरी है। जूलॉजी मतलब कि आपको ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है वहां पे पता है। अब अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पे जो आपने स्किल्स अटेन करी वो आप स्किल्स जूलॉजी के सब्जेक्ट की आप साइकोलॉजी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को भी हमें अपने क्लासरूम में प्रमोट करना चाहिए और बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटीज भी डेवलप करनी चाहिए कि वो अपने पहले एक्सपीरियंसेस को जो उसने अपने अर्ली क्लासेस में या अर्ली किसी दूसरे एरिया में वो एक्सपीरियंसेस सीखे हैं उन एक्सपीरियंस को कैसे वो अपनी नई सिचुएशन में यूज कर पाए, ये भी एक टीचर के लिए जानना बहुत जरूरी है और इसकी ट्रेनिंग हमें अपने स्टूडेंट्स को जरूर देनी चाहिए। यहाँ पे एक बात और बोलूंगी कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की ट्रेनिंग देते हैं तो ये बेसिकली उनके लिए उस जगह बहुत इंपॉर्टेंट होगी जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे होते हैं। वहां पे अगर डिफरेंट अप्रोच से वो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन एक अलग एंगल होने की वजह से ज्यादा स्कोरिंग होती है एट द प्लेस कि अगर आप सिंपल एक तरीके से जैसे सबने वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करी है वैसे ही आप उसको प्रोड्यूस करें। लास्ट वन इज एनवायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर। इट्स वेरी सिंपल। अगर हम एक क्लासरूम है जहां पे बहुत शांति है, आप प्रॉपरली बातें कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कोई बाहर शोर नहीं है, तो वहां पे आपको इफेक्टिवली वो चीजें हो जाएंगी। अगर कहीं बाहर बहुत शोर है, डिस्टरबेंसेस हैं, बच्चे जो है वो बाहर देख रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, आपको वो लर्निंग की प्रोसेस अटेन करने में मुश्किलें आएंगी। तो ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, अगर आप सोचिए कि कोई एक कमरे में जहां पे आप बिना पंखे के बच्चे को बैठ के पढ़ा देंगे 6 घंटे 10 घंटे, ओवर क्राउडेड क्लासरूम होगी, वहां पे आप उसको अच्छे से लर्निंग एक्सपीरियंसेस दे पाएंगे नहीं। तो सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि आपके क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। सिंपल पीसफुल एयरी क्लासरूम होनी चाहिए, स्पेशियस क्लासरूम होनी चाहिए, जहां अगर आप लर्निंग की सिचुएशन रखेंगे, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करेंगे, देन वो ज्यादा इफेक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू अदर सिचुएशंस। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, दैट इज लर्निंग के बारे में हमने जान लिया डिटेल। अब इसके बाद हम ये देखने की पोजीशन में है अप्रोचेस ऑफ लर्निंग कौन कौन सी हैं जो कि हमें देखनी है। आप लोगों को यहां तक अगर कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको डील कर लूंगी। हमने लर्निंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम अप्रोचेस ऑफ लर्निंग पे बढ़ रहे हैं। ओके, हमें 3 अप्रोचेस देखनी है लर्निंग की। फर्स्ट वन इज बिहेवियरिज्म, second one is cognitivism, and third one is constructivism. Behaviorism is simply related with behavior modification and it is visible aspect. Cognitivism जो आपके मेंटल मैकेनिज्म, आपके ब्रेन में जो चेंजेस हैं, दे आर नॉट विजिबल टू यू। जब तक आप उसके लिए कोई सिचुएशन नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक आपको वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिखाई नहीं देंगे। एंड लास्ट वन इज कंस्ट्रक्टिविज्म। यहाँ पे अभी सबसे ज्यादा जो इन है जो एस्पेक्ट लर्निंग का, दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, जहां पे हम ये कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज विद ऑल द एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज, वो अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। बस एज ए टीचर आपको एज ए फैसिलिटेटर काम करना है और आपको वो सारी सिचुएशन, वो सारा कंटेंट फैसिलिटेट करना है बच्चे को कि वो अपनी लर्निंग कर पाए। क्या क्या है ये एक एक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले, व्हाट इज बिहेवियरिज्म? लर्निंग अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट थ्योरी इज एन observable change in behavior. Is it clear? Any change that is observable in behavior, it is called as learning. The behavioral school of thought, which was founded by John B. Watson, described 3 types of learning. कौन सी हैं वो 3 types? First one is classical conditioning, second one is operant conditioning, and third one is observational learning. हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं सबसे पहले, जैसे वी आर गोइंग टू गेन कंसेप्ट, लेकिन आपको हमेशा जो भी टॉपिक या जो भी बात मैं कह रही हूं उसको आपके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन से देखना है। अगर मैं क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करूंगी, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करूंगी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करूंगी, तो हमारा फोकस इस तरफ होना चाहिए कि हम अपने क्लासरूम में इसको कैसे यूज करेंगे।
हम जो हमारा कंटेंट होता है, हम अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, मुझे आप लोगों के सब्जेक्ट एरिया के डिटेल तो नहीं पता है, लेकिन हमारा जो भी एरिया है उन एरियाज में हम इन कंसेप्ट्स को किस तरह से यूज करेंगे, आपकी जो थिंकिंग होगी, जो आपके साइड से एसिमिलेशन होगा, वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। जस्ट फाइंड आउट कि आप इसको हर एक थ्योरी से, चाहे हम बिहेवियरिस्ट से बात करें, कॉग्निटिव से बात करें, या हम कंस्ट्रक्टिविज्म से बात करेंगे, आपका फोकस केवल इतना होना चाहिए कि आपकी टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वहां पे आप इसको कैसे डील करेंगे। ओके, अब मैं वन बाय वन लेती हूँ। मैं एक बार चैट बॉक्स चेक कर लेती हूँ अगर आपकी कोई क्वेरी है। नहीं, कोई क्वेरीज नहीं है। अगर बिहेवियरिज्म की बात करें तो व्हाट आर द जनरल, अभी एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में। ओके, मैं देख लेती हूँ। बिहेवियर लर्निंग या फिर फेस लर्निंग, इसका कोई स्पेशल सब्जेक्ट होता है क्या? ओके, मतलब आप वो फेस रीडिंग वाली बात कर रहे हैं। ओके, नहीं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो मैं नहीं कहूं, लेकिन जो साइकोलॉजी के एरिया के जो लोग होते हैं, वो उनका अलग अलग एरिया में स्पेशलाइजेशन होता है। और बिल्कुल सब्जेक्ट क्या, मतलब आप लोगों को पता है आजकल के जो इंटरव्यू पैनल होते हैं, जैसे मैंने आपसे अभी भी डिस्कस किया कि अभी तो हम ये सोच में पड़ गए हैं कि ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे हैं, जहां पे ये भी पॉसिबल है कि आप पूरी पर्सनालिटी ना देखें। अब जैसे आप मेरे को देख के क्या बता सकते हैं कि मेरी पर्सनालिटी क्या है? नहीं। आप क्या कर रहे हैं, आप इतना देख रहे हैं क्या तरीका है, क्या एक्सप्रेशन है, वो ज्यादा नहीं बता पा रहे चीजें। तो एक अभी सारे इंटरव्यू पैनल में एक साइकोलॉजी के एरिया के एक्सपर्ट बैठाए जाते थे, जो आपकी पर्सनालिटी ऑब्जर्व करते हैं। आपने सुना होगा कि आपके बैठने के ढंग से, बहुत सारा लिटरेचर भी अवेलेबल है, आप हाथ किस तरह से ओपन करते हैं, खोलते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, आपके बैठने का तरीका क्या है, आप क्रॉस लेग करके बैठते हैं, आपके किसी जो ऑडियंस है आपकी, उसको फेस करने का तरीका क्या है, आप आई कांटेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ये सारी चीजें एक साइंटिफिक वे है और इनको अंडरस्टैंड करने के तरीके हैं। तो हम अलग से तो ब्रांच, अलग से सब्जेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, साइकोलॉजी के एरिया में इसके स्पेशलाइजेशन है। और आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि साइकोलॉजी में ऐसे ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं, जो एक टेस्ट है रोरशाक इंक ब्लॉक टेस्ट। मुझे पहले नहीं लगता था जब हम लोग ये पढ़ते थे, लेकिन बाद में मैं ये जान पाई हूँ कि वो इंक ब्लॉक टेस्ट जो है, वो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स की टेंडेंसी को भी आइडेंटिफाई करने में इफेक्टिव है। बस ये है कि हम उसको नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमें उसको यूज करने की ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन जो एक ट्रेन्ड पर्सन है जो उस पर काम कर रहा है, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। अगर हम लर्नर एंड लर्निंग पे बोल सकते हैं, तो वो लर्नर एंड लर्निंग पे नहीं बोल सकते, लेकिन जो उनका एरिया है काम करने का, उस पे हम भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, और वो उनका स्पेशलाइज्ड एरिया होता है। तो नो डाउट इसका एक सब्जेक्ट है। ओके, थैंक यू। जनरल अजम्पशंस ऑफ बिहेवियरिस्ट थ्योरी क्या क्या है हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग अप्लाई इक्वली टू डिफरेंट बिहेवियर्स एंड टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। डिफरेंट स्पीसीज हैं एनिमल्स को, जब भी बिहेवियर्स की बात करते हैं तो बिहेवियर्स ह्यूमन बीइंग को भी एक एनिमल मानते हैं, और जूलॉजी में भी यही है कि ये भी एक क्या है, एनिमल स्पीशीज है। Learning processes can be studied most objectively when the focus of study is on stimuli and responses. आप किसी भी स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बेसिस पे जो लर्निंग बिहेवियर है उनको बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम साइंटिफिक स्टडी। इसकी जो कमी है बिहेवियरिज्म की, वो जो इंटरनल मैकेनिज्म होती है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बोला था कि आपके क्लास में पर्सनालिटी वाइज अगर बच्चों को क्लासिफाई करें तो दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक आपके इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास में बहुत ज्यादा नहीं बोलते, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, और दूसरे आपके एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं, ओपनली अपनी बात को रखते हैं। तो क्या आप ये कह सकते हैं जो एक बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? बट जब हम बिहेवियरिज्म की बात करते हैं तो वहां पे वो जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है उसको कहीं ना कहीं हम एक्सक्लूड कर देते हैं और उसको नहीं देख पाते। तो इनका केवल सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब आपके बिहेवियरल चेंज में कोई चीज दिखाई दे रही है तो उसको ही हम क्या कह रहे हैं, लर्निंग कह रहे हैं। और बेसिकली मैं आपको अभी यहीं पे क्लियर कर देती हूँ, हालांकि मैं ये आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी।
जो बिहेवियरिज्म है वो अर्ली स्टेज पे काम आता है। जब हम अर्ली स्टेजेस ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, बच्चा छोटा होता है तो उसको छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती हैं, उसकी कंडीशनिंग की जाती है। तो वहां पे बिहेवियरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे है वो भी हम आगे पावलोव और स्किनर का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसमें पता चलेगा हमें। देन लर्निंग इन्वॉल्व्स ए बिहेवियरल चेंज, हम बार बार बात कर रहे हैं इसकी। ऑर्गेनिज्म आर बॉर्न एज ब्लैंक स्लेट। जो बिहेवियरिज्म की सबसे बड़ी जो कमी है वो ये वाला पॉइंट भी है। इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक ब्लैंक स्लेट होता है। एक साइकोलॉजिस्ट थे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने बच्चे को बोल दिया टैबुला रासा। टैबुला रासा उनके लिए एक वर्ड यूज किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हर एक बच्चा ब्लैंक होता है, कोरी स्लेट होता है, और हम उस पर जो चाहे वो लिख सकते हैं। मतलब हम उसको जैसा ट्रेनिंग देंगे, जैसा इन्वायरमेंट देंगे, वो वैसा बन जाएगा। ये वाला जो इनका अजम्पशन था, इसकी बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म हुई है, क्योंकि आज हम ये बिलीव करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया अबाउट द इम्प्रिंटिंग। जो भी एबिलिटीज हैं वो सारी एबिलिटीज आपके अंदर इनबिल्ट हैं, और एज ए टीचर आपको भी यही समझना है, आपके क्लासरूम में बच्चा जो है उसके पास सारी एबिलिटीज हैं इनबिल्ट, बट आपको उन एबिलिटीज को प्रॉपर इन्वायरमेंट देना है कि वो नर्चर हो सके। वो टैबुला रासा नहीं है, कोरी स्लेट नहीं है कि उसमें आपको जो लिखना होगा वही आप लिखेंगे। उसके अंदर सारी एबिलिटीज हैं, बस आपको एज ए टीचर उन एबिलिटीज को एक प्रॉपर डायरेक्शन देनी है। सपोज इसका जो कंट्राडिक्शन हुआ वो इस तरह से हुआ। आप मान लिया आपके पास दो बीज हैं, एक सेम का बीज है, एक मटर का बीज है। तो सेम के बीज से आपको सेम का ही पौधा मिलेगा, और मटर के बीज से आपको मटर का ही पौधा मिलेगा। इन्वायरमेंट चाहे आप कुछ भी दे लें, उसमें ये तो नहीं है कि आप इन्वायरमेंट चेंज कर देंगे तो कुछ दूसरा हो जाएगा। हाँ, इन्वायरमेंट का रोल भी है। अगर आप मटर को किसी चट्टान के बीच में मटर के बीज को दबा देंगे जाके, उसको पानी नहीं देंगे, धूप नहीं देंगे, तो भी वो पौधा नहीं बनेगा। सेम चीज सेम के लिए भी है कि उसमें भी अगर आप प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं देंगे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे, तो भी वो पौधा नहीं बनेगा। तो टैबुलर ऐसा को इसलिए कंट्राडिक्ट किया गया क्योंकि सारी एबिलिटीज आपकी हैं जेनेटिक मेकअप में, बस आपको उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट में नर्चर करना है एज ए टीचर। Last point is learning is largely the result of environmental events. जो environmental events हैं उनसे हर एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, और उन एक्सपीरियंसेस को वो एज लर्निंग कंक्लूड कर सकते हैं। What are the educational implication of behaviorism? हम इसको कैसे अपने एजुकेशन में देखें? Emphasis on behavior, drill and practice, rewards, breaking of habits. आपको बच्चे को कोई ट्रेनिंग करनी है, उसको रिवार्ड पनिशमेंट की थ्योरी पे आप काम कर सकते हैं कि हाँ अभी ये होगा तो ये मिलेगा। जनरली हम यही करते हैं अपने क्लासरूम में। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं? ये आई हैं आपके बिहेवियरिज्म से, जिन्होंने ये आपको सिखाया है कि अगर आप किसी भी एक बिहेवियर की लगातार ट्रेनिंग करेंगे तो वो बिहेवियर मॉडिफाई हो जाएगा। मॉर्निंग असेंबली क्या है? मॉर्निंग असेंबली इसी का पार्ट है। अगर आप लगातार 12 साल की स्कूलिंग में बच्चे को एक प्रोसेस सिखा रहे हैं, एक बिहेवियर, एक डिसिप्लिन, पॉजिटिव थॉट्स, वैल्यू एजुकेशन, तो कहीं ना कहीं वो उसके बिहेवियर में आ जाएंगी चीजें। स्पोर्ट्स क्लासेस, एक्सरसाइज हैबिट, ये सारी हैबिट्स जो हैं वो आपके हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए आप उसमें क्या कर सकते हैं? इनकलकेट कर सकते हैं। कभी भी आपका बच्चा क्लासरूम में लगातार लेट आता है, आप उसको पनिश करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन करते हैं, दैट इज फॉर ब्रेकिंग ऑफ हैबिट्स। अगर आप उन बिहेवियर्स को नहीं सप्रेस करेंगे तो वो कंटिन्यू होते रहेंगे, और वो अपनी लाइफ में भी क्या करेगा? उस बिहेवियर को रिटेन करना शुरू करेगा। ठीक, these are the educational implication of that very behaviorism. For behaviorism, we have to think about three aspects. First one is classical conditioning, second one is operant conditioning, and third one is observational learning. So first one is classical conditioning. So what is classical conditioning? A process in which an unnatural stimulus, by pairing with natural stimulus, acquires all the characteristics of natural stimulus. मे बी कि ये थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो रहा होगा। सबसे पहले अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं जो बात कर रही हूँ लर्निंग की, उसको समझाने के लिए मैं जो यूज कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि इट इज ऑल अबाउट स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। मैंने पहले भी आपको बताया, कोई भी लर्निंग होगी, सामने से हमें स्टिमुलस मिलेगा, उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करेंगे, दैट इज द लर्निंग। अब a physical event capable of affecting behavior is called stimulus. Stimulus क्या है हम पहले भी समझ चुके हैं।
the basic form of learning in which one stimulus come to serve as a signal for the occurrence of second stimulus. During classical conditioning, organism acquire information about the relation between various stimuli, not simple association between them. यहाँ पे जो क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट किया वो थॉर्नडाइक सॉरी पैवलव ने दिया था। पैवलव जो थे वो एक जूलॉजी के साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया वो एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बताया कि अगर हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग में क्लासिकल कंडीशनिंग किस तरह से इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले एग्जाम्पल पे ही चली जाती हूँ। पैवलव का एक्सपेरिमेंट ये था, आपको स्क्रीन पे विजिबल है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डॉग लिया और डॉग को अपने आर्टिफिशियल सिचुएशन में रखा लैबोरेटरी में। उसके बाद उन्होंने खाना उसको दिखाया। तो जब डॉग को खाना दिखाते हैं तो सलाइवेशन, उसके सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती हैं और उसको भूख लगी है तो उसकी लार या सलाइवा का सिक्रीशन हो जाता है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, एक नेचुरल बात है कि जैसे ही आप एक भूखे डॉग को खाना दिखाएंगे तो उसकी सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाएंगी और एक सलाइवेशन आपको दिखाई देगा। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस था फूड और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, सलाइवेशन। सिंपल, इसको हम एक लाइन में कह सकते हैं कि इट इज नेचुरल रिस्पॉन्स। दूसरे स्टेप पे उन्होंने क्या किया, बिफोर कंडीशनिंग उन्होंने एक बेल बजाई। डॉग को रखे हुए हैं, डॉग के सामने बेल बजाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, वो सुन लेगा। वो स्टूडेंट तो है नहीं कि वो खुश हो जाए या दुखी हो। अगर यहाँ पे कोई हमारा स्टूडेंट होता, उसके सामने बेल बजाई जाती तो वो ये सोचता कि अभी छुट्टी जल्दी हो गई क्या, बेल क्यों बज गई, क्योंकि स्कूल में है, बेल बज गई तो छुट्टी जल्दी होने का। लेकिन डॉग के लिए बेल का एज सच कोई रोल नहीं है। तो जब आपने डॉग को बेल बजाई, न्यूट्रल स्टिमुलस, तो उसके पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखा। अब वो सलाइवेशन तो करेगा नहीं बेल देख करके, उसने नहीं किया। स्टेज सेकेंड। स्टेज थर्ड पे जब हम आए तो उन्होंने क्या किया, फूड जब देने लगे तो फूड के साथ ही, कुत्ता भूखा है और जब उसको फूड दे रहे हैं तो फूड के साथ ही बेल भी बजाई। कई बार लगातार जब जब उसको फूड दिया, जब भी अपना एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंटिन्यू किया, फूड के साथ साथ उन्होंने बेल भी बजाते रहे। तो उससे क्या हुआ, उसकी एक तरह से कंडीशनिंग हो गई। अब जरा सा याद करिए, कंडीशनिंग के लिए मैंने क्या बोला था, डेफिनेशन कंडीशनिंग की थी, पेयरिंग ऑफ अननेचुरल स्टिमुलस विद नेचुरल स्टिमुलस। आपका फूड जो है वो नेचुरल स्टिमुलस है और जो बेल है दैट इज अननेचुरल स्टिमुलस। इसकी पेयरिंग हो गई और थोड़े समय बाद ये जो अननेचुरल स्टिमुलस है ये नेचुरल स्टिमुलस के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अटेन कर लेगा। कैसे अटेन किया इसने, लगातार जब भी फूड दिया गया बेल बजाएगी, बेल बजाए और फूड एक साथ दिया गया। कुछ समय बाद ऐसा हो गया कि जब खाली बेल बजा दी गई तो उस डॉग का सलाइवेशन स्टार्ट हो गया। क्यों, फूड नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे उसकी कंडीशनिंग हो गई थी। वो फूड के साथ बेल को इतने दिन से सुन रहा था कि उसको लगा कि बेल बज गई, इसका मतलब फूड आ गया। दैट इज conditioning. This is called as classical conditioning, where an unnatural stimulus acquire all the characteristic of natural stimulus after the process of conditioning. अब ये हमारे लिए क्यों यूजफुल है, एक्सपेरिमेंट पैवलव को हम एजुकेशन में क्यों पढ़ रहे हैं या लर्निंग की थ्योरी में हम बिहेवियरिज्म में क्यों जान रहे हैं, ये इसलिए है कि आप किसी भी बिहेवियर को ट्रेंड कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट को जब कंटिन्यू किया, कुछ समय लगातार बेल के साथ खाना नहीं देने पे ये फॉरगेटिंग भी हो गई, ये बिहेवियर थोड़े दिन बाद छूट भी गया। फिर उसने बेल के साथ सलाइवेशन नहीं किया क्योंकि उसको पता चल गया कि नहीं, बेल ही बचती है, खाली फूड नहीं मिलता है। तो इन सारी चीजों को हम अपने एजुकेशन में यूज करते हैं। बेसिकली ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स में जब हम किसी भी स्टिमुलस के साथ किसी भी चीजों को पेयर करते हैं, आप कहीं की भी ट्रेनिंग को देखिए, आप अपने स्कूल में बच्चों को ट्रेन करते हैं, एनसीसी में, आर्मी में, कहीं पे भी देखिए, तो उनके बहुत सारे ऐसे क्लूज हैं। वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके छोटे छोटे इशारे पे वो समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। इवन जब आपके सबसे ज्यादा तो जो
वॉर की सिचुएशन होती है वहां पे इस ट्रेनिंग की, हाँ ये जो जितनी भी ट्रेनिंग साइकोलॉजीज की बहुत सारे कंसेप्ट आए हैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करती हूँ। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार ये सारे इंट्रोड्यूस किए गए थे, क्योंकि वहां पे उस कंडीशन में जो ट्रेनिंग होती है वो थोड़ा ज्यादा ही डिफरेंट होती है। वहां पे ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखना होता है। तो ये था पावलोव का एक्सपेरिमेंट। अब हम अपने स्लाइड्स पे पीछे जाते हैं जहां पे मुझे क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बताना था। आई थिंक एक्सपेरिमेंट समझ में हो गया। मुझे लग रहा है चैट बॉक्स में भी कोई क्वेरी थी, मैं देख लेती हूँ। हाँ, Ma'am, I have one doubt. May I speak? let me take first that very questions in chat box. I think is there any relation of behavioral characteristics with physiological characteristics? If yes, please explain. Okay, हाँ अब आप अपना भी क्वेरी बता दीजिए। मैडम आप कोई पूछ Is it हाँ मैम, जयश्री मैम बताइए आप। is it neutral or stimulus? Because in the example you have written neutral stimulus and you're talking about a natural. Both are the same? No, this is neutral stimulus means it has no impact on dog. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बेल है तो बेल डॉग के लिए क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। बेल से डॉग को कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैंने बताया था कि एक स्टूडेंट अगर होता, बेल बज जाती तो उसके लिए बेल का मतलब है वो खुश हो जाता, ठीक है। लेकिन डॉग So के that लिए is the natural stimulus. हाँ, नेचुरल स्टिमुलस इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। आई एम आस्किंग फॉर दैट। फॉर एग्जांपल फूड इज नेचुरल स्टिमुलस एंड नेचुरल रिस्पॉन्स इज सलाइवेशन। न्यूट्रल स्टिमुलस मीनिंग हमारे लिए उसका कोई लेना देना नहीं है। मान लिया आर्मी कमांड चल रही है, आर्मी वाले कुछ अपने सिग्नल्स दे रहे हैं, हम वहां बैठे हैं, हमारा उससे कोई लेना देना थोड़ी है। तो वो सारे सिग्नल्स हमारे लिए न्यूट्रल स्टिमुलस है, क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारे लिए कमांड है, हमारे लिए ट्रेनिंग्स हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है, वो सारे स्टिमुलस हमारे लिए क्या है, नेचुरल हो सकते हैं, कंडीशन हो सकते हैं। हमने किसी को कंडीशन कर रहा है अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। नेचुरल स्टिमुलस मीन्स you have meaning for that very stimulus and you have natural response for that very stimulus. यहाँ पे हाँ एक बात बताती हूँ, ये जो सलाइवेशन है इट इज नेचुरल रेस्पॉन्स, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सपोज जैसे आपकी आंख के सामने कोई चीज आती है, कोई पत्थर आता है, तो आप अपनी आंखें अचानक से बंद हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? आपके ब्रेन में वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला काम होने का टाइम नहीं रहता वहां पे। दूसरा एग्जांपल है, मान लिया आपने हॉट प्लेट टच करी और विद इन द सेकंड आपका हाथ वहां से हट जाता है। कोई भी कांटा नीचे था, आपका पैर उस पर पड़ गया, आप विद इन द सेकंड क्या करते हैं, पैर वहां से आप हटा लेते हैं। ये सारे बिहेवियर जो है इनको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, और ये रिफ्लेक्स एक्शन आपके कंट्रोल में नहीं होते और ये आपके ब्रेन से भी गवर्न नहीं होते हैं। बाकी सारी जो लर्निंग की जो बातें मैं कर रही हूँ स्टिमुलस रिस्पॉन्स की, वो मैं कह रही हूँ कि पहले आपके सेंस चैनल उसको रिसीव करेंगे, रिसीव करके ब्रेन के पास ले जाएंगे, ब्रेन उस हिसाब से मैसेज करेगा, तब आपको उस हिसाब से काम करना है। लेकिन ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशंस कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती है जिनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो हमारे ब्रेन से ना कंट्रोल होके हमारे बैकबोन में एक कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड, उस स्पाइनल कॉर्ड से गवर्न होती हैं और इमीडिएट इफेक्ट करती हैं। दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। अब मैं ये जो क्वेरी है ये एक्चुअली मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ कि रिलेशन बिटवीन बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स विद फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्चुअली जो आपका बिहेवियर है वो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से तो गवर्न होगा ही। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों ने देख रखा होगा कि लेवल ऑफ स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। इवन बहुत सारी रिसर्चेस भी हो रही है कि ऑनलाइन एक्टिविटीज में भी क्या कहते हैं स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, और ये रियलिटी भी है। तो उस हिसाब से आपका बिहेवियर मॉडिफाई हो जाता है। और अगर हम फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात करें, फिजियोलॉजिकल वेल बीइंग की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को तो एस्पेक्ट करता ही है। अगर कोई भी इंडिविजुअल वो हेल्दी नहीं है, मान लिया आज मेरे को बुखार होता, ठीक है, 104, तो क्या मैं इस नॉर्मल कंडीशन में ये बिहेवियर कर पाती? नहीं कर पाती। तो सिंपल, अगर कोई बच्चा बहुत थका हुआ है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, 5 लेक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ पॉसिबल नहीं है, 3 घंटा का तो तब भी चल जाता है एक ब्रेक के बाद, तो क्या वो सेम बिहेवियर पॉसिबल है? आपके फिजियोलॉजिकल कंडीशन आपके बिहेवियर को नो डाउट अफेक्ट करती है, तो ये बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं। तो जितने भी आपके फिजियोलॉजिकल, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस,
कोई भी चीजें हैं वो आपको इफेक्ट करती हैं। जैसे मान लिया कभी किसी को ज्यादा एंजाइटी है तो उसका बिहेवियर आप देख सकते हैं, ऑब्जर्वेबल होगा। हाइपरटेंशन होगा तो उसका बिहेवियर, इवन जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है आपके बिहेवियर में। स्वेटिंग हो जाएगी, अनइजीनेस रहेगा, तो वो सारी चीजें दिख सकते हैं। तो बिल्कुल ये डायरेक्टली लिंक्ड है और क्लोजली लिंक्ड है। आई थिंक अब ये क्लियर हो गई होगी क्वेरी आपकी भी। मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। अब मैं अपनी पिछली स्लाइड पे जाती हूँ जहां मैंने बात करी थी व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, अ प्रोसेस इन विच एन अननेचुरल स्टिमुलस बाय पेयरिंग विद नेचुरल स्टिमुलस एक्वायर्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल स्टिमुलस। यही मैंने बताया है अभी कि फूड को बेल के साथ पेयरिंग करने पे उस बेल ने फूड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अक्वायर कर ली और केवल बेल पे ही एक रिस्पॉन्स मिला जिसको कि हम सलाइवेशन के रूप में देख सकते हैं। In case of classical conditioning, the process of learning is described as a stimulus-response connection or association. Classical conditioning theory has been explained with the help of Pavlov classical experiment in which the food was used as the natural stimulus, which was paired with the previously neutral stimulus, that's bell, in this case, by establishing an association between the natural stimulus food and the neutral stimuli sound of the bell, the desired response can be elicited. Is it clear? अब ये चीजें ज्यादा क्लियर हो गई होंगी जो मैंने एक्सपेरिमेंट में जो बातें कही हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं किस तरह से न्यूट्रल स्टिमुलस का कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा, फिर कंडीशनिंग में न्यूट्रल स्टिमुलस से अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ में अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मिला। लास्ट में जो न्यूट्रल स्टिमुलस था उससे ही हमें क्या मिला, कंडीशनड रिस्पॉन्स मिलने लगा। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद अब हम देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो आपका बिहेवियर है, बिहेवियर आपके दो तरीके के होते हैं, मैं क्लियर कर दूं। एक आपका होता है इमिटेड बिहेवियर, दूसरा होता है एलिसिटेड बिहेवियर। ठीक है, तो एलिसिटेड बिहेवियर आर ऑफ कैटेगरी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, मैंने बताया वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो इमिटेड बिहेवियर है दैट इज वॉलेंटरी रिस्पॉन्स कैन बी स्टॉप्ड बाय एनी इंडिविजुअल। आप जो इमिटेड बिहेवियर है उसमें आप उस रिस्पॉन्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन जो एलिसिटेड रिस्पॉन्सेज हैं, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्स एक्शन, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब हम देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। एन ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ प्रोसेस इन विच द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन इमिटेड rather than elicited one. ओके, यहाँ पे इमिटेड बिहेवियर होगा। वो जो वहां पे डॉग था उसका कोई कंट्रोल नहीं था, वो केवल सलाइवेशन किए जा रहा था। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम ये बताएंगे कि जो हमारा ट्रेनी है, जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं, उसके पास भी कुछ कंट्रोल है। जैसे यहाँ पे इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक रैट को रखा था, उसको लगातार एक लीवर दबाने पे, क्योंकि मैंने उसका डिटेल इंक्लूड नहीं किया क्योंकि अपने पास टाइम कम होता है और बहुत सारा टॉपिक कवर करना है। अभी हमारा ब्रेक होने कब होगा, कितनी देर में आप लोग मुझे बता। 12 बजे होगा मैम। अच्छा 12 बजे होगा, कितने देर के लिए? 10 to 15 मिनट्स का दे सकते हैं मैम ब्रेक। ठीक है, 10 जैसा भी होगा आप लोग, क्योंकि हम जितनी जल्दी रहें और 12:15 बजे जल्दी चालू कर लेंगे फिर। हाँ, क्योंकि हम जितनी ज्यादा देर रहेंगे हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटी है कि हम चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जब भी होगा तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वही है ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स की, जब हमें वहां पे है, क्योंकि आप लोगों को पूरे 28 दिन काम करना है, मैं तो एक दिन लेक्चर लेके चली जाऊंगी। तो ऑपरेंट में इन्होंने, मैंने इंक्लूड नहीं किया, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ। इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट अलग अलग किए थे। एक बार एक पिजन को रखा एक केज में, वहां पे एक लीवर को प्रेस करने पे, और रैट को रखा, वो लीवर को प्रेस करने पे उसको एक दाना मिलता था खाने का, तो वो उसको खाता था और उसका बिहेवियर वो ट्रेंड हो गया कि हाँ, अगर हमें भूख लगी तो हमें किस तरह से उस लीवर को प्रेस करना है और वो खाना ले लेना है। और पहले वो इधर उधर प्रेस करता था, जो पिजन था वो चोंच मार के करता था और रैट जो है वो अपने पंजे से प्रेस करता था। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जब ट्रेनिंग हो गई उनकी, तो उनको पता था कि जब उनको भूख लगती थी तो वो तुरंत जाके वो लीवर प्रेस करते थे और फूड ले लेते थे। तो ये बिहेवियर जो था वो उनका
इमिटेड बिहेवियर था। और जब हम इमिटेड बिहेवियर के ट्रेनिंग की बात करेंगे तो उस कंडीशन को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज रीइंफोर्समेंट, द एप्लीकेशन और रिमूवल ऑफ ए स्टिमुलस टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर इज कॉल्ड एज रीइंफोर्समेंट। हम अपने एजुकेशन में इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं और हम ये बोलते हैं कि जब आप क्लासरूम में रहें तो आप बच्चों को कंटिन्यूअसली रीइंफोर्स करते रहिए। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दो चीजें हैं। रीइंफोर्समेंट में आप किसी भी बिहेवियर के अकरेंस को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? आपने क्लासरूम में किसी स्टूडेंट को खड़ा किया, उसने आपका रिस्पॉन्स दिया क्वेश्चन का, और रिस्पॉन्स के बाद आपने कहा कि हाँ वेरी गुड, तुमने अच्छा बताया, ये उसके उस बिहेवियर को सपोर्ट करने वाला होता है। आप अगर इस तरह से उसको प्रमोट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उनको उस बिहेवियर को करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। मान लिया मॉर्निंग असेंबली में कोई बच्चा कुछ अच्छा करता है, कुछ अच्छे थॉट्स देता है, तो आपने उसको प्रमोट किया, बताया कि हाँ इनका ये अच्छा रहता है ये एस्पेक्ट और इसमें अच्छे हैं। या कोई एक्टिविटी में बच्चा पार्टिसिपेट करता है, आपने उसको प्रमोट किया, तो धीरे धीरे उसको वो बिहेवियर स्ट्रांग होता चला जाता है और वो उस बिहेवियर के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी चीज आप यूज करते हैं पनिशमेंट। जब कोई बिहेवियर आपको कम करना होता है, उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना होता है, तो हमारे पास जो टेक्निक है वो हम यूज करते हैं, दैट इज पनिशमेंट, उस बिहेवियर को कम करने के लिए। रीइंफोर्समेंट में जो हमें देखना है वो ये देखना है कि हम रीइंफोर्समेंट का यूज एज अ टीचर उतना ही करें जितना रिक्वायर्ड हो। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप अपने क्लास में अब सिखा दिया गया, वर्कशॉप में बताया गया था कि रीइंफोर्समेंट देना जरूरी है, खड़ा करना तो फिर आंसर दे तो तारीफ करना। तो अब टीचर्स क्या करते हैं कि वेरी गुड, तुम ही हमेशा बताते हो, बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा, भाई क्लैप करिए सारे लोग इनके लिए। तो एक एक्सट्रीम हो गया। अगर आप इस एक्सट्रीम में जाएंगे तो आपके क्लासरूम में वो दूसरे बच्चे जो उस समय नहीं बता पाए हैं वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होंगे। तो आपको रीइंफोर्समेंट यूज करना है, बट इसका जो शेड्यूल होगा वो आपको बहुत ध्यान से यूज करना है। किस जगह आप यूज कर रहे हैं, कितना यूज करना है। इसके लिए फिक्स रेशियो, फिक्स इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, किसी तरीके के ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और रीइंफोर्समेंट को अगर आप यूज करेंगे तो आप पॉजिटिव बिहेवियर्स को अपने स्टूडेंट्स में इंप्रूव करा सकते हैं। है क्या ऑपरेंट कंडीशनिंग, थोड़ा सा और समझ लेते हैं समराइज वे में। एडवर्ड थॉर्नडाइक और बीएफ स्किनर जैसे स्कॉलर्स ने इसको दिया ऑन द फैक्ट दैट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस शेप द बिहेवियर। मीन्स जो आपको कॉन्सिक्वेंस मिलता है, मतलब जो आपको रिजल्ट, जो आपको आउटपुट मिलता है, वो आपके बिहेवियर को शेप करता है। फिर द थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ अ रिस्पॉन्स इज आइदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। कोई भी रिस्पॉन्स है उसको रीइंफोर्समेंट की मदद से हम इंक्रीज या डिक्रीज करा सकते हैं। Skinner explained how with the help of reinforcement one can strengthen behavior and with punishment reduce behavior. It was also analyzed that the behavioral changes strongly depend on the schedule of reinforcement with focus on timing and rate of reinforcement. मैंने पहले ही आपको बताया, you can use variable इंटरवल, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो, कोई भी शेड्यूल आप बना लीजिए और उस हिसाब से अगर आप रेनफोर्समेंट को यूज करेंगे तो नो डाउट आपके क्लासरूम में जो बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर अडॉप्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। The observational learning process was propounded by Albert Bandura in his social learning theory, which focused on learning by imitation or observing people's behavior. For observational learning to take place effectively, four important elements will be essential: motivation, attention, memory, and motor skills. हुआ क्या, ये बिहेवियरिज्म में थ्योरी आई, बांडूरा ने दिया, और बांडूरा ने एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने एक बच्चे को एक डॉल दिया और उसको एग्रेसिव बिहेवियर का इमिटेशन करना सिखाया। मतलब उसको बॉल को मारना, ट्रेनिंग दी गई कि वो कैसे उस बॉल को मारता है, वो बॉल फिर से उठ जाती है, और लगातार उसके अंदर ये बिहेवियर देखा गया। और उस एक्सपेरिमेंट को दूसरे जो बच्चे थे जो बैठ रहे थे वो भी उसको देख के इमिटेट कर पा रहे थे। तो यहाँ पे जो बिहेवियरल लर्निंग है, जो बिहेवियरिज्म है, वो बहुत ज्यादा फोकस करता है
ऑब्जर्वेशन पे और इमिटेशन पे। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने क्लासरूम में होते हैं या हम अपनी सोसाइटी में होते हैं, हमें किस तरह से कपड़े पहनने हैं, कौन सा नया ट्रेंड है, क्या इसके बारे में कोई क्लास होती है? नहीं। हम क्या करते हैं, हम सिंपली ऑब्जर्व करते हैं। कभी लाइव ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ तो लाइव ऑब्जर्व करने का भी मौका नहीं है, हमने फेसबुक पे एक्सप्लोर कर लिया, मूवी में एक्सप्लोर कर लिया, देख लिया रिसेंट ट्रेंड क्या है, हमें पता हो गया कि हाँ ये फैशन इन है, ये फैशन आउट है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड दिस इज बाय ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। आपके क्लासरूम में स्पेशली जो छोटे क्लासरूम के बच्चे होते हैं, वहां पे टीचर्स के लिए ये भी कंपल्सन होता है स्कूल्स में, जैसे मान लिया आप कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन में भी होंगे, तो वहां पे ये बोलते हैं कि आपको किस तरह से कपड़े पहन के आने हैं, यू शुड बी टीचर लाइक। हायर एजुकेशन में हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है कि आप क्या पहनते हो, किस तरह से रहते हो, बट ये भी क्यों है? क्योंकि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है और इमिटेशन, और अर्ली स्टेज पे बच्चा अपने टीचर्स को ज्यादा ऑब्जर्व करता है, उसके बिहेवियर को ज्यादा ऑब्जर्व करता है, इसलिए वहां पे जो टीचर का बिहेवियर होना चाहिए, जो उसका बात करने का ढंग है, जो उसके अटायर है, जैसे भी की चीजें हैं, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, भले हम हायर एजुकेशन में उतना ध्यान ना दें। लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते कि हायर एजुकेशन पे उसका इम्पैक्ट नहीं कर पड़ता। नो डाउट टीचर की पर्सनालिटी का इम्पैक्ट आपकी क्लासरूम की लर्निंग पे हमेशा हर स्टेज पे रहता है। Is it clear? So this is all about the behaviorism and behavioral learning. One more important thing is that in behaviorism, you can observe that very behavioral change very clearly. ठीक है? और बाकी जो एस्पेक्ट्स होंगे, जैसे हम कॉग्निटिव में आए हैं, तो मे बी हमें वो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन लर्निंग की चीजें हमें अटेन नहीं हो रही हैं, लेकिन बिहेवियरिज्म में हम उन चीजों को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। In this aspect of learning, we are thinking about the unobservable change in mental knowledge. Okay, so this is the cognitive approach of learning. Cognitivism came about as a rejection of the behaviorist view. Psychologists believe that mental events or cognitivism could no longer be ignored. मैंने पहले भी बताया था, बिहेवियरिज्म वालों ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। क्या मेंटल प्रोसेस चल रही है उस पर उनका फोकस नहीं चला, उनको केवल जो लाइव बिहेवियरल मॉडिफिकेशन दिखाई दिए, दैट इज लर्निंग, बाकी चीजों को उन्होंने इग्नोर कर दिया। सो उसके बाद ये कॉग्निटिविज्म आया, जिसने इंटरनल हिडन जो मेंटल एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी लर्निंग में इंक्लूड किया, और नो डाउट आज हम जान पा रहे हैं कि उनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। What are the assumptions of this very theory? So some learning processes may be unique to human being. Cognitive processes are the focus of study. Objective, systematic observations of people's behavior should be the focus of scientific inquiry. However, inferences about unobservable mental processes can often be drawn for such behavior. No doubt कि observable behavior are important, but जो unobservable mental processes हैं वो भी learning का एक important component है। Individuals are actively involved in learning process. Learning involves the formation of mental association that are necessarily reflected in overt behavior change. Knowledge is organized. बात करेंगे स्कीमा की। पहले भी मैंने कहा था कि स्कीमा फॉर्म होते हैं। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू प्रीवियसली लर्नड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने बात करी थी चेनिंग। चेनिंग में एक एक्सपीरियंस को दूसरे एक्सपीरियंस से हम क्या करते हैं, लिंक करते हुए सीखते हैं। What are the educational implication of cognitive theory? Cognitive processes influence learning. As children grow, they become capable of increasingly more sophisticated thought. People organize the thing they learn. New information is most easily acquired when people can associate it with things that have already learned. बताया था ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट से लिंक करना। अगर हमें लिंकिंग अच्छी आती है देन लर्निंग ज्यादा अच्छे से होगी। एज अ टीचर आपको क्या करना है आपकी क्लासरूम में, हम हमेशा एक चीज बात करते हैं लर्निंग की ट्रेनिंग के लिए कि आप क्लासरूम में जाइए, सबसे पहले बच्चे की एबिलिटीज जानिए। जब बीएड और एमएड की ट्रेनिंग होती है तो वहां पे
हम बात करते हैं प्रीवियस नॉलेज की, तो उसके लिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप क्लास में जाते हैं तो बच्चे की क्या एबिलिटीज हैं हमें कैसे पता चलेंगी, किन एबिलिटीज के साथ वो लोग हैं। अब जैसे मुझे आज पता है ना कि यहाँ पे जितने लोग हैं, इंडक्शन प्रोग्राम कौन करेगा, जो हमारे इन सर्विस टीचर हैं, तो हमें हमारे ऑडियंस के बारे में पता है। हम जनरली जब हम लाइव क्लास में जाते हैं तो वहां पे हम जाके 5 मिनट में ये भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से एरिया के लोग हैं। मैं जनरली यही करती हूँ कि लिस्ट उठा के देखती हूँ कि कौन, जैसे आप लोगों की एक लिस्ट होती है HRDC में तैयार रहती है कि कौन किस एरिया का है, तो अपने को ही पता चल जाता है कि मैथ्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, ये है, ह्यूमैनिटीज के इतने हैं, इस तरह से लोग हैं। फिर उससे क्या आइडिया होता है, उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपके सामने जो ऑडियंस बैठी है उसको आपको किस तरह से कैटर करना है, आपको उनको क्या इंफॉर्मेशन देनी है। तो अगर आपको प्रीवियस नॉलेज का पता है एज ए टीचर अपने स्टूडेंट का जो आपके क्लासरूम में बैठे हैं, तो आप जो नई नॉलेज बिल्डअप करेंगे, एक गैप होता है, नॉलेज गैप, पहले जहां तक बच्चा जानता है और वो एक नई नॉलेज जहां से आपको प्रोवाइड करना है बच्चे को, तो हम वो 2 लाइन खींचते हैं और 2 लाइन खींच के हम ये बताते हैं कि एक नई लाइन है जिससे कि आपको न्यू नॉलेज लेवल प्रोवाइड करना है, और एक वो पुरानी लाइन है जहां तक बच्चा जानता है। उन 2 लाइनों के बीच का जो गैप है उसको आप जितना मिनिमाइज कर देंगे, वो 2 लाइन अगर ओवरलैपिंग हो जाएंगी तो फिर आपकी लर्निंग इफेक्टिव होगी क्लासरूम में। बच्चे को ये लगेगा कि हाँ, जहां तक मैं जानता था बस आगे वहीं से शुरू हुआ है, तो आपकी लर्निंग इफेक्टिव होगी। इसलिए आपको प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंसेस कहां तक हैं उनको वहीं से लिंक करने की जरूरत होती है, और उसको वहीं से आगे बढ़ाएंगे तो लर्निंग इफेक्टिव होगी। तो एज ए टीचर आपको इसको यूज करना है अपने क्लासरूम में। जनरली हम बात करते हैं जो उनको लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपने प्रोवाइड करे, जैसे हम नई बुक की बात करें मैथमेटिक्स की, तो उसमें सबसे पहले रिकैपिटुलेशन होता है। मान लिया क्लास 7th की बुक की बात करते हैं तो क्लास 6 में उसने क्या पढ़ा, फर्स्ट टॉपिक जो होता है वो उसी के लिए होता है। क्यों? क्योंकि मान लिया बच्चा क्लास 6 में जो पढ़ा हुआ था उसको एक बार रिकैपिचुलेट कराने के लिए पहली यूनिट मैथमेटिक्स में वही रखी जाती है कि पिछले वाले सेशन को आप एक बार रिकैपिचुलेट कर दीजिए और जो नई नॉलेज बिल्डअप करिए वो उस पुरानी नॉलेज पे ही बेस होनी चाहिए। वाई? बिकॉज ये प्रिंसिपल है कि जो ओल्ड नॉलेज लेवल है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज लेवल है और जो न्यू नॉलेज लेवल है आप अगर क्रिएट करने जा रहे हैं, उन दोनों के बीच में गैप बिल्कुल मिनिमाइज कर दीजिए। गैप जितना ज्यादा होगा लर्निंग उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, और जितना आप गैप मिनिमाइज कर देंगे लर्निंग आपकी उतनी इफेक्टिव होगी। जरा सा इसको अपने क्लासरूम में ट्राई करके देखिएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आप बच्चों की प्रीवियस नॉलेज जरा जान लीजिए और वहां से नॉलेज बिल्डअप करिए, तो नो डाउट लर्निंग इफेक्टिव होगी। पीपल कंट्रोल देयर ओन लर्निंग, जो लर्निंग का कंट्रोल होता है वो इंडिविजुअल के पास ही होता है। अब हम आते हैं, This presentation is continue for second session also, or there is some? हाँ वो मैंने नहीं साथ में ही बनाया है तो मैं साथ में कंटिन्यू कर अभी लूंगी। मैम 12 तो बज गए हैं जैसे, तो तो ब्रेक देना है क्या? हाँ, मतलब देखिए आपकी कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाएगी कि मतलब एक टॉपिक कंप्लीट करना है, क्या कैसे रहेगा? नहीं ठीक है, आप यहाँ पे मैं ब्रेक दे देती हूँ और इसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी से। चलेगा। आप दे सकते हैं क्योंकि उस साइड से ज्यादा एक्टिव होना जरूरी है रादर देन मैं। यस हाँ मैम, तो अपन थोड़ा 10-15 मिनट का ब्रेक दे देते हैं। 12:15 हाँ बजे हाँ, हम आप फिर बस से 10 ज्वाइन मिनट। करेंगे। मैं ये हाँ मीटिंग हम एंड कर 12:15 रही पे। हूँ सेव करने के लिए, और मैं 5 मिनट में फिर ओके से ऑन करती हूँ। ठीक है मैम, तो मैं वहां पे फिर से ज्वाइन करूंगी। येस हाँ येस मॅम. फ्रेंड्स, आज 15 मिनिटाचाच ब्रेक राहील. 12:15 आपलं नेक्स्ट लेक्चर चालू होईल. ओके ओके मैम, थैंक ओके ओके. सध्या मी बंद करते. मुझे 12:15 से कब तक का टाइम मिलेगा ये बता दीजिए। मैम 2 बजे तक है अपने पास टाइम. ओके ठीक है, हाँ तो मैं उसी में कंक्लूड करने की कोशिश करूंगी। यस मैम. ओके मैम, आई एम एंडिंग द मीटिंग. ओके।